मैं आज इस धरती पर से यहाँ के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया को स्वागत करते हुए मैं प्रहलाद दामोदर दास मोदी, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आप सबके सामने प्रधानमंत्री ने जो 160 से ज्यादा योजनाएं घोषित की, इन योजनाओं को जमीन पर लोगों के बीच, लोगों के लिए कार्यान्वित करने के लिए इस अभियान चलाया जा रहा है। उनका आवाज नहीं है, यहाँ बोलो। हमारे साथ पूरे हिंदुस्तान में 20 से 22 लाख कार्यकर चल रहे हैं। எங்களோடு 25 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்கள் இந்த திட்டத்தில் தன்னை ஆட்படுத்தியுள்ளனர்। हम ये 20 से 22 लाख के अंक को आम जनता के बीच जाकर हमारी कार्यशैली के जरिए 22 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। और ये काम के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान का प्रवास कर रहा हूं। இந்த செயல் திட்டத்தை முன்னிறுத்தி இந்தியா முழுவதும் சென்று வருகிறேன்। प्रधानमंत्री ने जो कोई योजना घोषित की है, आप लोगों को ऐसा होगा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको ये अभियान चलाना पड़ा। उसका एक ही जवाब है, ऐसे कई कुटुंब हैं जिनको देश में क्या चल रहा है उसका पता नहीं है। उन लोगों तक पहुंचकर कोने में बैठे हुए मेरे देश के नागरिक को मिलकर उसके लिए सरकार ने क्या काम किया है वो बताने का काम हम कर रहे हैं। இந்த நாட்டு நலப்பணி திட்டத்தை விளம்பரப்படுத்துவதற்கும் பரப்புவதற்கும் என்ன அவசியம் உள்ளது? இந்த இயக்கத்தின் நோக்கம் என்ன? இந்த இயக்கத்தின் நோக்கம் நாட்டு அரசாங்கத்திடம் பல வகையான திட்டங்கள் உள்ளன, பொதுமக்களுக்கு சென்று போவதில்லை, அதை அறிவிப்பதற்கும் விளம்பரப்படுத்துவதற்கும் இந்த திட்டத்தினுடைய இந்த இயக்கத்தினுடைய தொண்டர்கள் வேலை செய்துள்ளனர்। அதற்காக அதை முன்னிறுத்தியே இந்த இயக்கம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது। தேசிய அளவில் இதை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது। अभी मेरा ये प्रवास मेरे कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए, उनको ऊर्जा देने के लिए और अच्छे से अच्छी तरह से लोगों की सेवा करने का दिल बनाए, इसके लिए मैं आज तमिलनाडु आया हूँ। தமிழ்நாடு வருவதனுடைய நோக்கம் இந்தியா முழுவதும் உள்ள இந்த இயக்கத்தின் தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்கும் அவர்களுக்கு எனர்ஜி, அதாவது ஊக்கப்படுத்துவதற்காக நான் வந்துள்ளேன்। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के जरिए इस देश की सरकार, देश का प्रधानमंत्री गौरववंता बने,
அதாவது இந்த நாட்டு நலப்பணி திட்டத்தின் மூலமாக நாட்டு மக்கள் அனைவரும் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். அதன் மூலமாக இந்த ஆட்சிக்கும் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கும் பெருமை சேர்க்கிறது. और इसके लिए इस अभियान में किसी के पास से कोई प्रकार का दान दक्षिणा लिया नहीं जाता. இந்த இயக்கத்திற்காக இந்த இயக்கத்தின் நோக்கத்திற்காக யாரிடமிருந்தும் எந்த விதமான நன்கொடையோ சந்தாவோ பணமோ பெறப்படவில்லை. इस अभियान में मैं आप मीडिया वाले भाइयों से भी अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों के सहयोग बिना हमारी गाड़ी धीमी चले नहीं, इसलिए मैं आपका सहयोग मांगता हूं. இந்த திட்டத்தினை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் அதாவது மீடியாவில் சேர்ந்த நண்பர்களாகிய நீங்கள் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் எங்களுடைய வண்டி ஓடாது, நிர்வாகத்துடன் செல்லாது. அதற்காக நீங்களும் ஒத்துழைப்பு செய்து இந்த இயக்கத்தினை பயன்பெற செய்து வெற்றி பெற செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். सरकार ने जब जब योजनाएं घोषित की तो 2015 में ये काम शुरू किया गया नरेंद्र भाई के जन्मदिन के दिन. நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய பிறந்த நாள் அன்று இந்த ஜன் கல்யாண் யோஜனா நல்ல திட்டம் ये हमारी सोच और आपकी सोच हमने देखी. अभियान सरकार ने तो घोषित किया, कई योजनाएं घोषित की, लेकिन पता चला कि लोगों के दिमाग में योजना के बारे में कोई संज्ञा पहुंची नहीं, जरूरतमंदों को नहीं पहुंची. और इसके लिए ये सोचना पड़ा कि हम ऐसे लोगों का उपयोग करें जो निस्वार्थ सेवा करें और लोगों तक पहुंचे. அதாவது பல திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டும் நல்ல திட்டங்களாக இருந்தாலும் சில பேரிடம் மக்களிடம் சென்று சேரவில்லை. இதை கருத்தில் கொண்டு இந்த இயக்கம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இயக்கத்தின் நோக்கங்கள் தேவையானவர்களுக்கு ஆன தொண்டை செய்து அவர்களை பயன்பெற जहाँ राम राज्य की कल्पना है तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन हम लेते नहीं है पर दबा के किसी को. பலவந்தமாகவோ சந்தாவத்தின் மூலமாகவோ பிறரிடம் நன்கொடையாகவோ வாங்குவதே இல்லை. இறைவனிடம் நம்பிக்கை வைத்து இந்த காரியத்தை கூட இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய ஒத்துழைப்பாக இது சாத்தியமாகும். को पढ़ाई कराते हैं ना माँ बाप, तो बाद में पगार की अपेक्षा तो रखते हैं कि नहीं? तो आपको समझ लेना चाहिए. குழந்தை வளர்க்குறோம், விட்டு வளர்க்குறோம், அறிவுறுத்தி புகழ்ச்சி வளர்க்கும் போது அது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சொல்லுறோம். இந்த அறிவுக்கு இந்த தெளிவு இந்த பணம் பிரச்சாரம் திட்டங்களுடைய பிரச்சாரம் हमने कहा, अच्छा मेरी बात, हमने कहा कि ये चुनाव के साथ जुड़ा हुआ नहीं है. हमने कहा कि ये सरकार के साथ जुड़ा हुआ नहीं है. हमने कहा कि उस पर पार्टी का आशीर्वाद नहीं है. हमने कहीं कहा है तो आप ये सवाल खड़ा करते हो. எலெக்ஷனுக்கும் அரசாங்கத்திற்கும் பிஜேபிக்கும் இந்த திட்டத்திற்கும் தொடர்பு இல்லை என்று நான் சொல்வதே இல்லை. इसका मकसद है आपका हमारा मकसद स्पष्ट है. 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी
कि नेतृत्व में 400 पार करे। அதாவது உங்களுடைய இவருடைய நோக்கம் என்னன்னா 2024 எலெக்ஷன்ல 400 சீட்டுக்கு மேல பெறுவது தான்। ऐसा एक यहाँ पर कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को हम सिखाया है, जब उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, हाँ हमने सिखाया है और सिखाते भी है कि हाँ हमारी त्रुटि लगती है तो हम कैंप कर लेते हैं, उनको समझाते हैं कि हमें कैसे करना है। हमको घर जाना है, बुढ़ी माँ के पास बैठना है, घर से पानी लेकर पीना है, फिर उनसे बात चलाना है, उनसे पूछना है कि माँ रोटी कैसे बनाती हो। माँ बोलती है कि गैस से रोटी पकाती हूँ, तो तुरंत हम बोलते हैं किसने दिया है, तो माँ बोले कि मोदी ने दिया है। बस हमारा काम वहाँ हो जाता है कि माँ तेरे लिए मोदी ने एक चूल्हा दिया है, तो अब तेरे लिए आवाज भी देने की बात की है, तेरे को आवाज चाहिए। माँ बोलती है पता नहीं है तो उसको कर्मचारी के पास ले जाते, बताते, फॉर्म दिला दे। ये काम करने का काम हमारा है। அதாவது எங்களுடைய தொண்டர்களுக்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிக்கிறோம், கேம்புகள்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கூட்டு முறையான பயிற்சி அளிக்கிறோம்। அவங்களுக்கு நான் எப்படி சொல்கிறோம்னா ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் போங்க, தண்ணி வாங்கி கொடுங்க, அவங்க சமைச்சாங்கன்னா அவங்களோட சேர்த்து சாப்பிடுங்க, அவங்க என்ன விஷயம்னு கேட்பாங்க, அவங்களோட இருக்கு அவங்களுக்கு தன்னுடைய நோக்கத்தை தெரிவிங்க, அவங்களுக்கு பலனை பலனை அந்த ஒத்துழைப்பு तब ये सीधा साधा चुनाव का प्रचार ही है। पहले लोगों की सेवा, बाद में चुनाव का प्रचार। बिल्स करके किसान बिल्स करके यहाँ पर जो कानून है जिसके बारे में लोगों को सत्या नहीं है, कोई अवगत नहीं है इसके बारे में, आप क्यों ना मीडिया का इस्तेमाल करके एक अभियान चलाएं ताकि सभी को मालूम हो, यानी नीचे से नीचे जो किसान अधीन जो हैं उन तक पहुँचे। ये क्यों आप नहीं करते हैं? अभियान तो आपका जो सूचन हमको मिला है हम उस पर हमारी कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा करेंगे और फिर कुछ निर्णय करेंगे। இது சம்பந்தமாக எங்களுடைய சமாதான பேசி நாங்கள் முடிவெடுத்து இதை செயல்படுத்தும்। देना है ये तो भारत सरकार को पूछिए, ये हमारे अभियान का भाग नहीं है। அரசாங்கத்திடம் இந்த இயக்கத்திற்கும் வேலையில்லா एक देश एक चुनाव जो तंत्र मंत्र जो है 2024 में चालू होगा, इसके लिए राजकीय पार्टियों के मुखिया से बात कीजिए। இந்த சம்பந்தமாக நீங்கள் எல்லாம் சேர்த்து நாட்டு தலைவர்களிடம் வேண்டும்। உங்கள் ரெட் தமிழ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை அழுத்தி வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெறுங்கள்।